यस मैम, आ रही है। Hello students, can you hear me? यस मैम, आ रही है आवाज आपकी। Good, good, good. Let others also join in, then we'll start the class. बहुत दिनों के बाद हो रही है आपकी क्लास। अब हमें सिलेबस पूरा करना जी है मैम। जल्दी। We'll wait for another couple of minutes and then we'll start the class. जिनको आना है आ जाएंगे इसमें। चलो, we shall start the class, huh? So there are 14 participants right now. Okay, ma'am. Okay. So in the previous classes, we were done with the introduction part, introduction to epidemiology, definition of epidemiology. So we had discussed the definition of epidemiology in detail. Then we were done with the definition of epidemic, endemic, and pandemic. Were we or were we not? We were done with it. Yes, ma'am. Good. Then we were done with the definition of epidemiologist, epizootiologist. You can differentiate between epidemics and epizootics. We had started with the history of epidemiology, right? So now, in today's class, we'll study history of epidemiology, and if there's some time remaining, we'll discuss the importance of these. So the history of, before we start with the history of epidemiology, let me give you a brief background to this, to the history of diseases. How did the globalization of diseases occur? Because that is very important. The context is very important to understand the history of epidemiology. देखिए, मैं पहले भी आपको कई बार क्लासेस में बता चुकी हूँ that since the beginning of the human civilization, around 5,000 to almost 6,000 to 7,000 years ago, there were 4 great civilizations all over the world. The 4 great civilizations, all the 4 of them developed independent of each other. They evolved independent of each other, and the 4 great civilizations, the earliest human civilizations were, first was the Indus Valley civilization, Sindhu Ghati Sabhyata जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. Then another one was the Chinese civilization, Chini Sabhyata. All 4 of these civilizations developed around the same time, around 6 to 7,000 years from now ago. The third was the Mesopotamian civilization, जो आज का present day Iraq region है, वहाँ पर develop हुई थी. And the fourth was the Egyptian civilization, जिसको हम मिस्र की सभ्यता बोलते हैं, जो कि जो present day Egypt है, वहाँ पर develop हुई. तो ये earliest human civilizations हैं known in history till date. And they occurred, they evolved around the same time. They reached their peak around the same time. ये चारों civilizations, all 4 of these civilizations developed independent of each other, evolved independent of each other, and later they established trade contacts amongst the 4 of them. So सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अरब जाते थे ट्रेड के लिए.
चाइना जाते थे ट्रेड के लिए, ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं। उसके अब होता क्या है कि ह्यूमन सिविलाइजेशंस में जब ह्यूमंस इवॉल्व हुए और ह्यूमंस ने एक जगह ग्रुप्स में रहना शुरू किया, when people started living together, civilizations evolve हुई, तो एक साथ जब आप रहते हैं तब डिजीजेस कम्युनिकेट होती है, ठीक है, एक से दूसरे में बीमारी फैलने की संभावना बढ़ती है जब आप एक साथ रहते हैं। इसीलिए जब कोई कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे आज की प्रेजेंट डे पैंडेमिक कंडीशन में आइसोलेशन में रहने को बोला जाता है, आप जितना लोगों से दूर रह सकें, लॉकडाउन इसीलिए लगाया गया था ना कि आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट को मिनिमाइज कर सकें, क्योंकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ने की संभावना बढ़ती है। तो जब लोग एक साथ रहने लगे सिविलाइजेशंस में, तो ऑब्वियसली जब एक साथ रहेंगे तो बहुत सारा वेस्ट भी इकट्ठा होगा। वेस्ट डिस्पोजल के उस वक्त मेथड्स नहीं थे जिनसे जर्म्स पनपते थे और बीमारियां होती थी और वो फैलती थी। लेकिन बहुत समय तक, हजारों सालों तक, these civilizations, although they were in trade contact with each other, they were limited to their own continents where they had developed. जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में डेवलप हुई थी, जो आज का प्रेजेंट डे इंडिया पाकिस्तान रीजन है, वहां पर लिमिटेड थी वो। चाइनीज सिविलाइजेशन चाइना में लिमिटेड थी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन लाइकवाइज अपने अपने एरिया में लिमिटेड थे। बहुत ज्यादा माइग्रेशन नहीं था बिटवीन द सिविलाइजेशंस, ऑल्दो ट्रेड कॉन्टैक्ट्स वर देयर, बट दे वर लिमिटेड। तो बीमारियों का ग्लोबलाइजेशन उस वक्त तक हुआ नहीं था। एक कॉन्टिनेंट पर जो बीमारी थी, एंडेमिक थी, वो उसी कॉन्टिनेंट तक सीमित रही कई हजारों वर्षों तक। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक मूवी का जिक्र करूंगी। वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स एक मूवी है, 2005 में आई थी। टॉम क्रूज उसमें एक्टर थे। उस मूवी में एंड में, मूवी इंपॉर्टेंट नहीं है, उस मूवी में एंड में एक स्पीच है। वो एच.जी. वेल्स की नॉवेल पर आधारित एक मूवी थी। उस मूवी में एंड में एक स्पीच है 2 मिनट की। वो स्पीच मैं आपको बोलना चाहती हूँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा आप। वो आपके कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हिस्ट्री ऑफ एपिडेमियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ रही हूँ स्पीच को, आप ध्यान से सुनिएगा। 2 मिनट की है। फ्रॉम द मोमेंट, अब उसका बैकग्राउंड बता देती हूँ। मूवी में ऐसा था कि देयर इज अ वॉर ऑफ बिटवीन 2 वर्ल्ड्स। फर्स्ट वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ अर्थ, जो हमारी दुनिया है, पृथ्वी की दुनिया, और दूसरा वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ मार्स। तो कुछ मार्शियंस, एलियंस पृथ्वी पर आते हैं। उस मूवी में दिखाया गया है दैट सम एलियंस लैंड अपॉन अर्थ and they come here with an ambition or a drive to colonize earth. पृथ्वी पर कब्जा करने की नियत से वो आते हैं। वो बहुत हद तक सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि जो अर्थ के निवासी थे, यानी हम जो है, हमारे पास उनसे लड़ने के लिए हथियार नहीं थे। They were very developed, the aliens were very developed creatures and they had almost colonized the earth. But later, in the end, towards the end in that movie, they have shown that something happened, that the aliens started dying themselves. And it was not because we did something, we as in the natives of the earth did something to them, or we were able to fight them, but the germs or the microorganisms or the creatures that were available on earth, aliens did not have immunity to those creatures. And those germs or microorganisms were able to ultimately defeat those aliens, infect them, defeat their system, and so in the end the aliens died and earth could be saved from those aliens or the Martians. Martians means the creatures that were native to the Mars and who had come to colonize the earth. तो इसमें एंड में, मूवी के एंड में जो स्पीच है वो मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। From the moment the invaders arrived, invaders here are the Martians, okay? From the moment the invaders arrived, bread are ate and drank, they were doomed. मैं साथ में हिंदी में इसका अनुवाद भी करती जा रही हूँ जिनको नहीं समझ में आ रहा है। जिस क्षण से आक्रमणकारी पृथ्वी पर लैंड हुए, पहुंचे, हमारी हवा में सांस ली, खाना खाया, पानी पिया, उनका विनाश निश्चित था। उसी क्षण से उनका विनाश निश्चित था। They were undone, destroyed, after all of man's weapons and devices had failed.
उनका विनाश तब हुआ जब मानव द्वारा निर्मित सभी हथियार और उपकरण विफल हो गए. By the tiniest of creatures that God in his wisdom had put upon this earth. उन सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा, क्रीचर्स के द्वारा, जिन्हें ईश्वर ने अपनी चतुराई में पृथ्वी पर रखा था या पृथ्वी पर भेजा था. जिन जीवाणुओं, कीटाणुओं या सूक्ष्म जीवों को हम अपना दुश्मन समझते हैं, ऑब्वियसली वो हमारे दुश्मन हैं, जैसे कि वायरस, जो कोरोना वायरस जो हमारा दुश्मन है, हमें भी मारता है, लेकिन वो क्रीचर्स पृथ्वी पर रखने में, ऐसा उस मूवी में अंत में स्पीच में दर्शाया गया है कि ईश्वर के मन में कोई मंशा रही होगी जिस वजह से उन्हें भी हमारे साथ पृथ्वी पर भेजा गया. And those very tiniest of creatures that God had put in his wisdom upon this earth were able to ultimately destroy the Martians or the aliens who had come from a different planet. So the speech then continues. I'll again read the speech. From the moment the invaders arrived, breathed our air, ate and drank, they were doomed. They were undone, destroyed, after all of man's weapons and devices had failed. By the tiniest of creatures that God in his wisdom had put upon this earth. By the toll of 1 billion deaths, man had earned his immunity, his right to survive among this planet's infinite organisms. That right is ours against all challenges, for neither do men live nor die in vain. तो ये स्पीच ये बताती है, इस छोटी सी स्पीच का सार ये है कि ह्यूमंस ने भी इन जीवाणुओं या कीटाणुओं के अगेंस्ट इम्यूनिटी, दे हैव डेवलप्ड दिस इम्यूनिटी थ्रू थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, थ्रू एवोल्यूशन. ऐसा नहीं है कि मानव प्रजाति का जो पृथ्वी पर जन्म हुआ और एवोल्यूशन हो रहा था तो शुरू से वो इम्यून थे इन ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में. एवोल्यूशन के प्रोसेस में हमने धीरे धीरे इनके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप की है. कोरोना वायरस एक नोवेल कोरोना वायरस है, इसलिए इसके हमारे पास इम्यूनिटी नहीं है, इसीलिए इतने बड़े स्तर पर पैंडेमिक फैला है. तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. धीरे धीरे जैसे जैसे हम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करेंगे इस वायरस के लिए, जो लोग एक्सपोज होंगे वो अपने बॉडी में एंटीबॉडीज उनके शरीर में बनेंगी, तो इम्यूनिटी डेवलप होगी और इम्यूनिटी स्प्रेड होगी. जैसे एक डिजीज स्प्रेड होती है वैसे ही इम्यूनिटी भी स्प्रेड होती है. एंड by the time we develop immunity, that is 70 to 80% of people get immune to this virus, then it becomes almost impossible for the virus to travel through the population, because almost 70 to 80% people have become immune to the virus. So virus cannot travel beyond a certain chain of people. अगर मान लीजिए 2-3 लोग हैं भी या 100 लोग हैं, अगर उनमें से 80% हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए 70 to 80% पीपल हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी, इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी बाय एक्सपोजर टू द वायरस ऑब्वियसली. तो अगर 100 लोगों में 70 से 80% लोग इम्यून हो गए हैं, इम्यूनिटी का मतलब है कि वो वायरस अगर दोबारा आपके शरीर पर अटैक करता है तो आपका शरीर उससे लड़ने में सक्षम है, अब वो बीमारी नहीं कॉज कर पाएगा आपके शरीर. एंड इफ out of 100 people, 70 to 80 people are immune, then it becomes very difficult for the virus to travel through a long chain of humans. क्योंकि मान लीजिए 10 या 20 या 30 लोग ही ऐसे बचे ना 100 में जिनमें इम्यूनिटी नहीं है, तो उनके थ्रू अगर ट्रैवल, हर आदमी तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो वायरस एक साथ सारे इम्यून लोगों को के थ्रू ट्रैवल करेगा या नॉन इम्यून लोगों के थ्रू ट्रैवल करेगा. एक इम्यून व्यक्ति के संपर्क में वो आएगा तो उन इम्यून व्यक्तियों के संपर्क में 4 इम्यून लोग हैं और एक नॉन इम्यून है, तो वो एक नॉन इम्यून को ही अफेक्ट कर पाएगा. लेकिन अगर उस नॉन इम्यून व्यक्ति के आसपास 5 लोग इम्यून हैं तो उस तक बीमारी पहुंचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. इसी को बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी. तो इफ 70 to 80% people are immune to a particular disease, then it is said that the population has developed herd immunity, and now the rest of the people need not be vaccinated or immunized against the disease. There is no need. Okay. तो ये इस मूवी में दर्शाया गया है कि मानव के सारे आधुनिक उपकरण और हथियार भी उन मार्शियन एलियंस को मारने में जब अक्षम हो गए, फेल हो गए, तब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जर्म्स हैं, जिनको हम अपना दुश्मन समझ, और वो हैं भी, क्योंकि जन्म से लेकर माँ के पेट से आप बाहर आते हैं और मृत्यु तक आपका शरीर एक कांस्टेंट वॉर वेज करता रहता है अगेंस्ट दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एंड समटाइम्स दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विन, इसलिए हम बीमार पड़ जाते हैं.
बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आवर इम्यून सिस्टम विंस, इसलिए हम बीमार नहीं पड़ते हैं, हम इसको फाइट कर सकते हैं, फाइट कर पाते हैं। अब हुआ हजारों सालों में, क्योंकि ह्यूमन सिविलाइजेशंस एक ही कॉन्टिनेंट तक लिमिटेड रही, इसलिए बीमारियां जो पनपी वो एंडेमिक हो गई। एंडेमिक की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, अगर कोई बीमारी किसी जगह पर घर बना लेती है, यानी हर कुछ सालों में वो बीमारी रिपीट होती है, वहां पर अपना सर उठाती है, तो उस बीमारी को एंडेमिक बोलते हैं। कि कुछ सालों के या एपिडेमियोलॉजिस्ट का मानना है कि अगले कुछ सालों में कोरोना वायरस जो कोविड-19 जो डिजीज है वो भी एंडेमिक हो जाएगी, स्पेशली इन सर्टेन रीजन्स ऑफ एशिया, क्योंकि हमारे यहाँ उतनी जागरूकता की कमी है और साफ सफाई की कमी है। तो एंडेमिक हो सकती है, ये डर है कि कोविड-19 हो सकता है स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंडेमिक हो जाए, यानी कि हर साल या हर 2 सालों पे इसके प्रकरण ये बीमारी अपना सर उठाए हमारे जनसंख्या में। हमारे इनको जैसे कॉलेरा एक ऐसी डिजीज थी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंडेमिक हो चुकी थी। अब एंडेमिक ऐसे ही यूरोपियन रीजन में कुछ बीमारियां एंडेमिक हो चुकी थी। इसके बाद ये 4 सिविलाइजेशन की आपको जानकारी मिलती है। इसके बाद धीरे धीरे जिस वक्त हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस वक्त यूरोप में क्या, तो ये 4 तो मैंने आपको चारों एशियन रीजन्स हैं। तो एक इजिप्शियन सिविलाइजेशन अफ्रीका को छोड़कर, याद रखिएगा ये हिस्ट्री की क्लास है इसलिए आपको ये सारा बताना जरूरी है, हिस्ट्री ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन सिर्फ अफ्रीका की, बाकी तीनों सिविलाइजेशन एशिया में ही पनपी थी। द ग्रेट सिविलाइजेशन जो आज से 6 से 7,000 साल पुरानी सभ्यताएं हैं। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन प्रेजेंट डे इराक रीजन में पनपी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पनपी थी। चाइनीज सिविलाइजेशन चाइना में पनपी थी। तो ये सिर्फ एशियन और अफ्रीकन रीजन सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यूरोप में आप पूछेंगे उस वक्त क्या हो रहा था, उस वक्त यूरोप में मतलब ह्यूमन एंसेस्टर्स जैसे हमारे होते हैं ना, कि जो प्रिमिटिव ह्यूमंस, उस अवस्था में यूरोपियंस रहते थे। मतलब अगर आप यूरोपियंस बोले, प्रिमिटिव ह्यूमन सिविलाइजेशन वाली स्टेज में थी यूरोपियन सिविलाइजेशन। उसके बाद वहां पर कई सालों के बाद फिर रोम और ग्रीस मतलब रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशन पनपी। रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशन आप इस तरीके से उसको डेट कर सकते हैं कि जब हमारे यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर था, बुद्ध महावीर का टाइम था, बुद्ध महावीर, देन नंदास का जो टाइम था, नंद देन मौर्यस, वो उस टाइम में ग्रीक सिविलाइजेशन अपने चरम पर थी। उसके बाद रोमन सिविलाइजेशन अपने चरम पर आई। आफ्टर द फॉल ऑफ द ग्रीक एंड रोमन एम्पायर्स, इन ये सभ्यताएं भी खत्म हो गई। तो ग्रीक और रोमन एम्पायर्स जिस वक्त अपने पीक पर थी, उस वक्त साइंटिफिक टेम्परामेंट यूरोप में अपने चरम पर था। हिपोक्रेटिस एक कंटेम्पररी थे, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के कंटेम्पररी थे। तो अराउंड 300 बीसी जब चंद्रगुप्त मौर्य अपना मौर्यन एम्पायर एक्सटेंड कर रहे थे, इस्टेब्लिश हो चुका था, वेल इस्टेब्लिश था उनका एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य का, और वो एक्सटेंड कर रहे थे डाउन साउथ में डेक्कन की तरफ, उसी वक्त हिपोक्रेटिस ग्रीस में अपनी साइंटिफिक स्टडीज किया करते थे। तो उस जब ग्रीक और रोमन एम्पायर जिस वक्त अपने चरम पर थी, उस वक्त यूरोप में साइंस चरम पर थी। लेकिन जैसे ही इन एम्पायर्स का डाउनफॉल हुआ यूरोप में, तो स्पिरिचुअल यूरोप, स्पेशली आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको ज्यादातर एपिडेमियोलॉजी की बुक्स में यूरोपियन हिस्ट्री ऑफ एपिडेमियोलॉजी ही मिलेगी। इंडियन या एशियन हिस्ट्री ऑफ एपिडेमियोलॉजी बहुत कम बुक्स में मिलती है। तो ये जैसे ही वापस यूरोप रिटर्न टू द एरा ऑफ स्पिरिचुअल कॉजेज ऑफ डिजीज, जो हमारे यहाँ प्रिमिटिव टाइम्स में होता था कि बीमारियां स्पिरिचुअल कॉजेज से होती हैं, नेचुरल कॉजेज से होती हैं, ईश्वर बीमारियां भेजता है। जो साइंटिफिक रीजन ढूंढने की जो एक प्रथा चल रही थी और रोमन सिविलाइजेशंस में साइंटिफिक रीजनिंग की, वो बंद कर दी गई। अब उसके बाद बहुत समय तक वहां पे डार्क एजेस रहे यूरोप में, डार्क एजेस इन द सेंस ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट। उसके बाद रेनेसां हुआ, और दूसरा वो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे। जब मॉडर्न टाइम्स आए और इस बीच में यूरोपियन सिविलाइजेशन पनपना शुरू हुई और नेटिव
नेशन स्टेट्स डेवलप होना शुरू हुए, यानी कि भाषा के आधार पर यूरोप में देश बनना शुरू हुए। तो नेशन स्टेट्स जब बने तब वो नेशन स्टेट्स जिस वक्त यूरोप में बन रहे थे उस वक्त वहां पर एक इकोनॉमिक फिलॉसफी प्रेवलेंट थी जिसको बोलते हैं मर्केंटिलिज्म, वाणिज्यवाद। अब मर्केंटिलिज्म की जो थियरी थी, जो आर्थिक धारणा थी, वो ये प्रतिपादित करती थी कि अगर किसी देश को, क्योंकि उस वक्त यूरोप में भाषा के आधार पर देशों का विभाजन हो रहा था, देश अपनी पहचान बना रहे थे। जैसे फ्रांस में वो लोग रहते थे जो फ्रेंच बोलते थे, इंग्लैंड में वो लोग रहते थे जो इंग्लिश बोलते थे, जर्मनी उन लोगों का देश था जो जर्मन भाषा बोलते थे। तो इसको बोलते हैं नेशन स्टेट्स की अवधारणा यूरोप में पनप रही थी। उन देशों, उस वक्त जो यूरोप में जो आर्थिक धारणा प्रचलित थी मर्केंटिलिज्म या वाणिज्यवाद की, वो ये प्रतिपादित करती थी कि अगर किसी देश को या किसी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनना है, बड़ा बनना है, महान बनना है, तो उस जितनी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज या उसको हिंदी में क्या बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, तो प्राकृतिक संसाधन, जितने ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों पर किसी देश का कब्जा होगा उतना बड़ा, उतना महान, उतना अमीर वो देश बनेगा। तो इस लालसा के चलते, because of this greed, most of the European nations, they started out on a journey to find out new unventured places across the earth and colonize everything and anything that is available for them. अब ये दुनिया भर को कॉलोनाइज करने के लिए यानी उन पे कब्जा करने के लिए निकल गए। इन्होंने कॉलोनाइजेशन की अपनी नीति के चलते ही भारत को गुलाम बनाया था ना, इन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज किया था। अब उस जब कॉलोनाइज करने की मुहिम पे ये सारे देश निकल गए, इंग्लैंड ही या ब्रिटेन ही निकला था। ब्रिटेन हमको गुलाम बना पाया, लेकिन उस 5 देश भारत आए थे। डच आए थे, पोर्टुगीज आए थे, फ्रेंच और इंग्लिश आए थे। ये 5 एटलीस्ट इनके अलावा भी बाकी देश दुनिया भर में गए थे कॉलोनाइज करने के लिए। तो डच, पोर्टुगीज, डैनिश, फ्रेंच एंड इंग्लिश, ब्रिटिश जब ये कॉलोनाइज करने के लिए भारत आए तो इनमें आपस में भी बहुत सारे युद्ध हुए। They fought amongst many wars amongst themselves and industrial revolution came first. All of them were competing for industrial revolution, that their country should be first in bringing industrial revolution in Europe. But ultimately Britain won this race. Industrial revolution first of all came in Britain, and therefore Britain was able to defeat all of the other colonizing or European forces and colonize India and many other countries across the world. आपने सुनी होगी ना वो कहावत कि ब्रिटिश साम्राज्य एक वक्त पर ऐसा साम्राज्य था जहां सूरज कभी ढलता नहीं था। सूरज कभी ढलता नहीं था का अर्थ ये है कि अगर दुनिया के एक हिस्से में जहां पर उनकी सत्ता थी वहां सूरज डूबता था, तो दूसरे हिस्से में जहां उनकी सत्ता थी वहां पर सूरज उग जाता था। तो उस साम्राज्य में ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं था जहां पे सूरज डूबता था। एक साम्राज्य के एक हिस्से में अगर सूरज डूबता था तो दुनिया में उस साम्राज्य के दूसरे हिस्से में सूरज उगा होता था। तो ब्रिटेन ने दुनिया भर में कई देशों को कॉलोनाइज किया था। ऐसे ही फ्रेंच ने किया था, पोर्टुगीज ने किया था, डैनिश ने किया था, स्पेनिश ने किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत को ही खोजने निकले थे ना, जो कि अल्टीमेटली अमेरिका की खोज उन्होंने की थी। तो अमेरिका का तो पता ही नहीं था यूरोपियंस को, वो तो एक अनवेंचर्ड लैंड था जहां वो गलती से पहुंच गए थे। 1 मिनट का ब्रेक लूंगी मैं, 1 मिनट का ब्रेक लूंगी। इसलिए उस अनवेंचर्ड लैंड को आपको एपिडेमियोलॉजी की बुक्स में न्यू वर्ल्ड के नाम से भी ये टर्म भी आपको सुनने को मिलेगी। तो वो न्यू वर्ल्ड अमेरिका जो कि जिसकी दुनिया में पता ही नहीं था किसी को कि ऐसा कोई हिस्सा दुनिया में है भी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने उसकी खोज की, तब दुनिया को पता चला कि ऐसा कोई रीजन भी है दुनिया में। और एक बार पता चला उसके बाद सारे यूरोपियंस, स्पेनिश, ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, पोर्टुगीज, डैनिश, सारे यूरोपियन फोर्सेस वहां पहुंच गए उस पर कब्जा करने के लिए। तो इसीलिए अमेरिका में
उसकी शुरुआत 13 कॉलोनीज से हुई थी जो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज ने वहां पर इस्टेब्लिश की थी अमेरिका में। फिर उसके बाद अमेरिका एक अलग अलग यूरोपियन कल्चर्स के मिसजेनाइजेशन से एक उनकी अलग आइडेंटिटी डेवलप हुई, अमेरिकन आइडेंटिटी। फिर उन्होंने ब्रिटेन वहां भी डोमिनेट करता था क्योंकि इंडस्ट्री वो ऑब्वियसली सबसे पावरफुल यूरोपियन फोर्स था उस वक्त, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसके यहाँ आ चुकी थी उस वक्त। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये तीन बहुत पावरफुल उस वक्त के यूरोप के बहुत पावरफुल देश माने जाते थे। अमेरिका की तो शुरू, हालांकि अमेरिका को बसाया यूरोपियंस नहीं है, लेकिन सारे यूरोपियन कल्चर्स ने वहां पर जो अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की, इनके कल्चर्स के मिसजेनाइजेशन से एक अलग आइडेंटिटी डेवलप हुई, अमेरिकन आइडेंटिटी, जो कि उन्होंने बाद में फिर ब्रिटेन के अगेंस्ट में विद्रोह करके खुद को आजाद कर लिया था। कनाडा पर ब्रिटेन की पकड़ काफी लंबे समय तक बनी रही, इसलिए कनाडा बहुत बाद में आजाद हुआ था। तो जब अब हुआ क्या कि जब ये कॉलोनाइज करने के लिए ये सारे यूरोपियन देश दुनिया भर में गए, तो आप जब एक जगह से, जैसे आपने ये मार्शियंस के केस में देखा कि मार्शियंस जब अर्थ पर आए तो अर्थ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए उनके पास इम्यूनिटी नहीं थी, और इसीलिए अल्टीमेटली दे fell prey to the microorganisms or germs that were present on Earth, because they did not have any immunity against those microorganisms, and the microorganisms were ultimately able to kill them, all the Martians. ये यूरोपियंस जब दुनिया भर में गए तो यूरोपियंस के पास अब यूरोप में एंडेमिक डिजीजेस के अगेंस्ट तो इम्यूनिटी थी, एक सर्कुलेटिंग इम्यूनिटी की बात कर रही हूँ मैं। हम भारत में जितनी डिजीजेस एंडेमिक हैं उनके अगेंस्ट सर्कुलेटिंग इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी हमारे भीतर है। लेकिन भारत के बाहर से अगर कोई डिजीज आती है, जैसे कोरोना वायरस आया ही, या लेट्स से इबोला, गॉड फॉरबिड कभी ना आए, अगर इबोला वायरस आ जाता है, या जीका की कई केसेस आपको 2 साल पहले राजस्थान में सुनने को मिले थे, अगर ऐसा कोई वायरस आ जाता है तो उसके अगेंस्ट सर्कुलेटिंग या हर्ड इम्यूनिटी भारत में अभी नहीं है, तो बहुत लंबे स्तर पर बीमारी ये फैलेगी और लोग मरेंगे if the disease is lethal। 10 मिनट ही बचे हैं तो मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ, फिर उसके बाद कल से हम लंबी क्लास लेंगे, 2 घंटे की क्लास लेंगे। ये जब गए तो अपने जो यूरोप के कीटाणु थे, क्योंकि आप अगर बीमार हैं तो आप अपने साथ कीटाणु कैरी करते हैं ना, ऐसे ही तो कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलती हैं। यूरोप के कीटाणुओं को लेकर या यूरोप के जर्म बीमारियों को लेकर ये इन्होंने दुनिया भर में फैलाया, और दुनिया भर की बीमारियों को, क्योंकि ये दुनिया भर में गए तो दुनिया भर की बीमारियां अपने साथ लेकर ये वापस यूरोप गए, क्योंकि अपने देश भी ये आते जाते रहते थे। अब हुआ ये कि इसकी वजह से बीमारियों का ग्लोबलाइजेशन हो गया। जो बीमारियां अभी तक कॉन्टिनेंट्स तक सीमित थी, उसी कॉन्टिनेंट तक एंडेमिक थी, उन बीमारियों का ग्लोबलाइजेशन हो गया। ऐसी ही एक बीमारी जो कि हिस्ट्री ऑफ एपिडेमियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस कॉलेरा। हैजा, हिंदी कॉलेरा को हिंदी में हैजा भी बोलते हैं। कॉलेरा वाज एंडेमिक टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। दिस डिजीज वाज एंडेमिक टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। आज 300 साल पहले भी आपको हैजा या कॉलेरा के प्रकोप के रिटन रिकॉर्ड मिलेंगे भारत में। ये हर कुछ सालों पर ये बीमारी अपना प्रकोप दिखाती थी और गांव के गांव साफ हो जाते थे। मतलब entire villages, it used to sweep out all entire villages। लोग पूरे गांव साफ हो जाते थे, कुछ ही लोग बचते थे, ऐसा होता था। और कारण पता नहीं था कि हैजा होता किस लिए है, ईश्वरीय प्रकोप की वजह से होता है या जो भी है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये एंडेमिक थी बीमारी, यानी कि हर कुछ सालों पर आती थी, लोग मरते थे। धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी, सर्कुलेटिंग इम्यूनिटी इंडियंस में डेवलप होनी शुरू हुई थी कॉलेरा के अगेंस्ट। लेकिन फिर भी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन होती थी, यानी जो एल्डर्स होते थे या यंग इन्फेंट्स होते थे, इन पे ज्यादा प्रकोप होता था, क्योंकि इनके पास कोई इम्यूनिटी होती नहीं। और जो हर्ड इम्यूनिटी से बाहर जो लोग रहते थे वो भी उनकी भी अक्सर डेथ हो जाती थी। तो जब ये आए, यूरोपियंस आए, और उसके बाद यूरोप की बीमारियां ये यहाँ पर लेकर आए, मतलब दुनिया भर में लेकर गए, और दुनिया भर की बीमारियां जब यूरोप लेकर गए, उन्हीं में से एक बीमारी थी कॉलेरा। कॉलेरा हिस्ट्री ऑफ एपिडेमियोलॉजी में जब आप पढ़ेंगे तो 7 ग्लोबल कॉलेरा पैंडेमिक्स हैव अकर्ड ऑन दिस अर्थ। जैसे कि ये प्रेजेंट कोविड-19 पैंडेमिक है, ऐसे 7 ग्लोबल कॉलेरा पैंडेमिक्स
have occurred in the last 200 years in human history. And all of these cholera pandemics, medical historians suggest that every time the disease originated in India, and at least in first 4 or 5 of them, of the pandemics, the disease originated in India and then it spread to the rest of the world because Europeans used to travel all over the world. पहला जो फर्स्ट कॉलेरा पैंडेमिक था ये 1817 में, इसके पहले आउटब्रेक्स रेगुलर इंटरवल्स पर इंडिया में होते रहते थे. पहला पैंडेमिक 1817 में हुआ था. सो इट स्टार्टेड इन द गैंजेस डेल्टा रीजन. गैंजेस डेल्टा समझते हैं ना, जहां पर नदी फिंगर लाइक उसमें समुद्र में गिरती है, समझते हैं ना डेल्टा, पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी में. तो वहां पे हाथ के उंगलियों जैसा डेल्टा बन जाता है जहां पर नदी गिरती है ना प्रवाह के साथ समंदर में. तो जो गैंजेस डेल्टा है जहां पर गंगा नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, उस रीजन में ये बीमारी की शुरुआत हुई थी 1817 में. और वहां से फिर ये एशिया में, साउथ एशिया में फैली, साउथ ईस्ट एशिया में फैली, मिडिल ईस्ट में फैली और फिर मेडिटेरेनियन कोस्ट तक यानी कि ईस्टर्न यूरोप तक ये बीमारी पहुंच गई यूरोपियंस के थ्रू. इसमें लाखों लोगों की जान गई, भारत में लाखों लोगों की जान गई. सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई और दुनिया भर में भी हुई, और ब्रिटिश सोल्जर्स की काफी मौतें हुई, जिससे पहली बार यूरोपियंस का ध्यान इस बीमारी कॉलेरा की तरफ गए. उसके बाद जो सेकंड ग्लोबल कॉलेरा पैंडेमिक आया वो था 1829 से, और ये पहला पैंडेमिक 1824 तक दुनिया में रहा. सेकंड 1829 से 1837 तक उसने दुनिया में अपना प्रकोप मचाया. ये दूसरा भी भारत में इसकी शुरुआत हुई थी. भारत से पहले में ऐसा बोलते हैं कि कुंभ मेले के थ्रू ये बीमारी, कुंभ मेले में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, ये लोअर गैंजेस डेल्टा में पनपी थी, वहां से लोग कुंभ मेले में आए अपर गैंजेस डेल्टा में. वहां से लोग भारत के अलग अलग हिस्सों में वापस जब लौटे तो सब बीमारी ले गए. फिर वहां से साउथ ईस्ट एशिया गई ये बीमारी, फिर साउथ ईस्ट एशिया से देन इट ट्रैवल्ड टू मिडिल ईस्ट एंड नेक्स्ट टू द मेडिटेरेनियन कोस्ट अफ्रीका एंड द मेडिटेरेनियन कोस्ट ऑफ यूरोप. सेकंड टाइम ऐसा मेडिकल हिस्टोरियंस का मानना है कि भारत में फिर से ये दोबारा बीमारी पनपी, और हज पिलग्रिमेज पर भारत से कुछ लोग गए जिनमें से कुछ को कॉलेरा था, एंड दे देन टुक द डिजीज टू मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट से फिर ये जर्मनी, फ्रांस, इन सब इलाकों तक, हंगरी, रशिया, वहां तक भी ये बीमारी पहुंच गई. यानी कि प्रॉपर यूरोप तक ये बीमारी पहुंच गई. सेकेंड कॉलेरा. Then third came in 1846 to 1860. अब ये थर्ड जो ग्लोबल कॉलेरा पैंडेमिक है, this is very important in the context of history of epidemiology. इसी तीसरे ग्लोबल कॉलेरा पैंडेमिक के दौरान ही इस पैंडेमिक की शुरुआत 1846 में हुई थी, और 1849 के अराउंड दिस पैंडेमिक रीच्ड लंदन यानी ब्रिटेन. अब यूरोपियंस के पास क्योंकि इस डिजीज कॉलेरा के अगेंस्ट कोई इम्यूनिटी नहीं थी, अचानक से भी कॉलेरा जो डिजीज है ये अचानक से लाखों लोग मर जाते थे. जैसे ही ये यूरोप पहुंची, क्योंकि उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी, सर्कुलेटिंग इम्यूनिटी नहीं थी, लोग अचानक से मर जाते थे, लाखों लोग मर जाते थे, कुछ ही सब दिनों के अंदर मर जाते थे. इसका इतना भयानक प्रकोप हो गया, लाखों लोग, दुनिया भर में करोड़ों लोग मरे, उनमें से लाखों लोग अकेले यूरोप में मरे क्योंकि उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं. इसका इतना प्रकोप हुआ कि उस वक्त के यूरोप में अगर आप बिलबोर्ड्स और पोस्टर्स देखेंगे करोना बोल रही हूँ, कॉलेरा के अगेंस्ट में, तो इस बीमारी को बहुत ही भयावह रूप में कार्टून्स और उनसे दर्शाया जाता था कि मौत आ गई है. इसको मौत का नाम दिया जाता था. कारण पता नहीं था किसी को कैसे होता है. अगर कारण ही नहीं पता है तो आप इलाज कैसे खोजेंगे. तो जितने साइंटिस्ट और फिजिशियंस थे उस वक्त के, वो इस बीमारी का कारण खोजने में लग गए कि इस बीमारी का ये है क्या, ये बीमारी किस वजह से होती है. उन्हीं में से एक फिजिशियन थे जॉन स्नो, जो कि लंदन में रहते थे. उन्होंने, को आप फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी भी बोलते हैं. तो जॉन स्नो के पहले, मैं लगभग 50 साल पहले की मैं आपको बात बता दूं कि ये तो
ब्रिटिशर्स का मानना है कि, और दुनिया भर का मानना है कि फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी जॉन स्नो थे, लेकिन उसके पहले भी कोई एक पायनियर थे जिन्होंने एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज मॉडर्न साइंस में जिसकी शुरुआत की थी, जिनका नाम है बेंजामिन रश। तो बेंजामिन रश एक अमेरिकन थे, एक फिलाडेल्फियन फिजिशियन थे, जिन्होंने येलो फीवर का जब आउटब्रेक्स हुआ था वहां पर लेट 1700s में, तो उन्होंने येलो फीवर के कॉज को ढूंढने की कोशिश की थी। ऐसा माना जाता था कि येलो फीवर जो ट्रॉपिकल पोर्ट से जो शिप्स आते थे अमेरिका में, उनमें जो लोग आते थे और उन शिप्स में जो सामान लद कर आता था, जो मर्चेंडाइज आता था, उनके थ्रू ये डिजीज अमेरिका पहुंचती थी। अमेरिका में बहुत भीषण एपिडेमिक आया था कई सालों तक वो येलो फीवर का। डॉक्टर बेंजामिन रश एक थे और उन्होंने इसका कारण खोजने की जब कोशिश की, तो he was very right till the point that he concluded that the cases of yellow fever were arising from the docks where ships came from tropical ports. लेकिन एक गलत कंक्लूजन की वजह से, हो सकता है कि आप आज उनको फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी बोल रहे होते बेंजामिन रश को, लेकिन उनको फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी इसलिए नहीं बोला जाता है बिकॉज ही मिसकंक्लूडेड and he came to the conclusion that the cause of the disease were the decaying coffee beans that were stored in the port warehouses where the ships were docked. तो वहां पर जो उनका ऐसा मानना था, वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे अपनी स्टडीज से, जो भी स्टडी उन्होंने की, कि उन पोर्ट्स पर जो गोदामों में जो कॉफी बीन्स रहती थी, उन कॉफी बीन्स के सड़ने से, वो उन कॉफी बीन्स में ऐसा कुछ था जिसकी वजह से उस वक्त ना मायाज़मा थियरी का भी प्रेवलेंट थी डिजीज की। मायाज़मा का मतलब होता है पोल्यूटेड एयर। तो पोल्यूटेड, ऐसा माना जाता था कि पोल्यूटेड एयर की वजह से बीमारियां फैलती हैं। उनका ऐसा मानना था कि जो डिकेइंग कॉफी बीन्स हैं जो ट्रॉपिकल पोर्ट्स पर गोदामों में रखे रहते हैं, उनसे ये बीमारी उनके साथ जुड़ी हुई है, जो कि बाद में